So, good morning, students. Uh, Today, definitely we are going to finish percentage. Okay. So, before starting the new question, let's have a recap of what we studied in our last lecture, so that one thorough revision will help you. So, in previous lecture, what we are focusing on directly how to summarize these successive increment or the successive discounts. Okay. So, for that purpose, what I was telling you people, that always there is a quantity 1 represent the original quantity. Okay. In case of successive discount, suppose 2 or 3 successive discount were given. Okay. Suppose 3 successive discount were given 10%, then 20%, then 30%. So, I am trying to calculate, instead of giving these 3 successive discount, what will be the single discount. Instead of giving these 3 successive discount one after one, if I am going to ask that you have to give a single discount, then what will be the value of that particular discount. Or in case of 3 successive increment, if I am going to ask you, rather than providing the 3 successive increment one by one, you have to provide a single increment. Okay. So, what we will do, since this is 1, so we have to move forward. Okay. Suppose initial value is 100, then we have to proceed forward or towards final value. It means that all the operations are to be performed in numerator of initial value. Okay. So, what we will do, 100 into, since it is the increment, so what I will do, 1.1 more than 1 into 1.2 into 1.3. It means that either provide this or multiply it, and whatever will come, that will be equal to this one. So, let us multiply once. 1.2 into 1.1, that is 1.716. It means that 71.6%, 0.716, we can call it just like 1.1, we call it 1 as a 10%. In the same manner, 1.716 we will call it as 71.6%. So, 71.6% is the single increment whose value is equal to 3 successive increment of 10%, 20% and 30%, isn't it? यही पढ़े थे हम लोग कल. So, 71.6% is the increment. However, the final value is, when we are going to multiply that particular number, when we are going to multiply this particular number by 1.716, we will get final number. Okay. समझ में आ रहा है? यही हम लोग कल पढ़े थे. Now, if a successive discount, if we are asking of 10%, then 20% plus 30%. Suppose if 3 successive discounts were given, so I am going to ask, rather than providing 3 successive discount, what will be the value of single discount whose value is equal to these 3 successive discount. So, in that case, what we will do, this is 1. Okay. Since we are providing a discount of 10%, it means that 0.9, because 10% is discounted from 1.
again 20% means 0.8, again 30% means 0.7. ओके, ठीक है. So if our value is 100, then 100 is multiplied by 0.9, 0.8, 0.7. Okay, or we can say that 0.9 into 0.8, what will be its value? 8 9 ja 72. into 0.7, 7 2 ja 14, 7 7 ja 49, 50. So 0.504. So we are going to multiply it 100 by, so we are getting the final value. But what is the discount which have been provided? What is the discount? See, this is the final number. When we are going to multiply 100 by this amount, whatever will come is the final outcome after the discount. But I am not interested in calculating the final outcome. I am interested in calculating the discount. So what will be the discount? So discount is, this is the final quantity. So discount will be 1 minus, are you getting something? Okay, so this is the final discount or multiplied by 100. So this will be the final discount what we will get. समझ में आ गया यहाँ तक? Is everything is okay? क्योंकि जब हम 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिस्काउंट होने के बाद की वैल्यू आएगी. सपोज करिए पहले अमाउंट कितना था 100, आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट व्हाट विल बी इट्स वैल्यू. So rather than increasing single step, what we will do, we will directly 100 into 0.9 into 0.8 into 0.7. So what will be the final value? Final value is 50.4. So what is the discount? 100 minus 50.4, because the original was 100, the new one is 50.4. See here, original was 100, the new one is 50.4. So what is the discount? 49.6. Either do it like this or 0.504. This is the now final value. So 1 minus 0.504, that is 0.496. So 0.496 represent the discount or the absolute value of discount. Then for that multiplied by the initial value, we will get the discount. This is the concept which we read in our previous lecture. Okay. On the basis of this concept only we have solved that voting question in single line, and I think that you people are comfortable in solving in single line. Okay. Today you will get the PDF of this also. Okay. प्रवीण जी PDF पार्ट सेकंड का दे दीजिएगा. Okay. Now let's move to the question. Now see here. What question is, see, these are the simple way of solving the question. Okay, we have already told you we have many ways of solving the question, but we will try to solve the question with that particular way which is time efficient and calculation efficient too. Okay, so that we are able to save our time. Now see here what question is saying. A salesman is allowed 12% commission on the total sale made by him and a bonus of 1% on sale over 15,000. If the total earning of salesman is rupees 7650, find the total sale. Okay. What question is asking that there is a shopkeeper, he has launched a product and for that he appointed few salesmen
Now he said that to the salesman that you have to sell the product, and up to 15,000 I am going to give you 12% commission on the total sale. But if you are selling beyond 15,000, then 1% bonus will also be given as a incentive, okay, so that it will motivate you and you people try to sell more than 15,000. Okay, so up to 15,000 what is the commission? 12%. Beyond 15,000 what will be the commission? 12% plus 1%, it means that 13%. So see here, up to 15,000 what is the commission? 12%. Beyond 15,000 what is the commission? 13%. Suppose if the salesman sold products worth 20,000, then what will be his commission? Out of 20,000, up to 15,000, he will get commission at the rate 12%, and beyond 15,000 how much amount is remaining? 5,000. So on remaining 5,000 he will get a commission of 13%. So do you people understood the question, what question is trying to say or convey? So in that scenario, the salesman earning through commission is 7,650. Okay, so we have to calculate that how much worth product has been sold by the salesman. Question is clear? Now see, this question can be attempted in many ways. The one of the simple way of solving this question is that first of all we calculate the 12% of 15,000. Suppose one way of solving the question is calculate 12% of 15,000, whatever is coming. Suppose 5,000 is coming. Let's for example 5,000 is coming, then subtract this 5,000 from his earning. What will be remaining is 13%, but here we don't know this value, whether he sold the product of 20,000 or 30,000 or 40,000. Are you getting what I am saying? So first of all what we will do, we will calculate the 12% of 15,000, we will subtract it from here. Whatever is remaining is actually the 13% of the value. So here we will assume here that instead of 5,000, here we will assume it is x, and instead of 20,000 we will assume here it is 15,000 plus x, because up to 15,000 he is getting a commission of 12%. Beyond 15,000 we don't know, so we have assumed that beyond 15,000 its value is x. So on 15,000 he is getting a commission of 12%, and on x percent he is getting a value commission of 13%. When we are going to add both these commission, it should be equal to 7650. समझ में आ रहा है? So what we will do, first of all we will calculate the 12% of 15,000. Whatever is coming we will subtract it from here. Whatever is still remaining is nothing but the 13% of x. Okay, so this is the one way. But in order to solve our calculation we can do one thing. Try to understand. नहीं आएगा समझ में तो पूछिएगा. See, in this entire thing there is a difference of only 1%. Okay, that is up to 15,000 he is getting 12%. Beyond 15,000 he is getting 13%. So see, in order to make our calculation easy, what we can do? We from our side we can provide a flat rate of commission of 13% to the salesman. Suppose Anjali is the businessman or the shopkeeper, he appointed a salesman to me. Okay, now he is saying the same condition to me that Subhranshu, up to 12%, up to 15,000 I am going to pay you 12% commission, and beyond 15,000 I will pay you 13% commission. Okay, 1% incentive. So being a CA, Pallavi came. Okay,
कल क्या हो गया था? अच्छा चलिए भाई सॉरी अभी इस टाइम आ जाएंगे, बढ़िया है, अब कोई चेंजेस नहीं होगा. आप प्लीज़ गो थ्रू माई रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ yesterday. Okay. नहीं, one new concept I told yesterday. Okay. Okay, give me 5 minutes. I will try to explain you. Okay. First of all, listen this question. What question is saying that there is a shopkeeper, okay, who appointed few salesmen, and he put a condition on the salesman that if you are going to sell the product worth 15,000, I am going to give you a commission of 12%. But if you are going to sell the product worth more than 15,000, then on those extra 15,000, I am going to pay you incentive of 1%. It means that up to 15,000, the shopkeeper is paying a commission of 12% to the salesman, and beyond 15,000, whatever he is selling, he will get a commission of 13%, isn't it? Now the total earning of salesman is 7,650. Okay. So what has been asked in the question? In question it has been asked that find the total sell. Okay. Find the total worth of the sales done by the salesman. So see, one thing is that his earning is basically of comprises of what? %12 of 15,000 plus 13% of X, or we can say that let the total sell done by salesman is 15,000 plus X. This is the total worth of sale. Since this is the total worth of sale, then over this amount the salesman is earning 12% up to 15,000, and beyond 15,000 he is earning 13% at the rate X. So what we will do, this is the total earning, and this total earning is 7,650. So what we will do, we will calculate 12% of 15,000, subtract it from here, whatever is remaining in his earning, that is because of 13% on X. So here we will calculate X and we will put the value of X in this equation, so we will get the total sale. But rather than involving in all these things, there is a trick also. We can't say trick, means a logic, that suppose the salesman is getting a differentiated commission. Up to 15,000 he is getting 12%, beyond 15,000 he is getting 13%. So what if we provide him the flat commission of 13%? Is it also possible now? See what I mean to say. Up to 15,000 he is getting a commission of 12%. Beyond it he is getting a commission of 13%. Okay. So rather than involving ourselves in the calculation which I made just now, we can provide a flat commission of salesman up to 13%. So in that scenario, if we are going to provide a salesman, instead of differentiated commission of 12% and 13%, if we are providing a salesman a commission of flat 13%, okay, then in that scenario, what was his earning? See, this earning is because of what? This earning is because of 12% up to 15,000 and thereafter 13% on the amount greater than 15,000. But if we say that whatever is written in the question, leave for few time. Now I am saying that rather than provided him a discount of 12% and 13% on differentiated ground, let us provide him a flat discount of 13%
or flat commission of 13% on the entire sale. So if we are providing him a flat discount, flat commission of 13%, then in that scenario his earning will increase. Why his earning will increase? Because up to 15,000 he is getting 12%, beyond 15,000 he is getting 13%. So if we will provide him flat commission of 13%, then 1% extra we are going to pay up to 15,000. 15,000 तक उसको 12% मिल रहा है, 15,000 के बाद उसको 13% मिल रहा है कमीशन. हम बोल रहे हैं कि हम उसको फ्लैट 13% कमीशन दे दें. तो इन दैट सिनेरियो उसकी जो भी अर्निंग है वो अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी. क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि पहले वो अप टू 15,000 ही इज गेटिंग अ कमीशन 12%, बट नाउ बिकॉज ऑफ आवर मॉडिफिकेशन ही विल गेट अप टू 15,000 1% एक्स्ट्रा. मिल तो रहा था 12%, हम बोल रहे हैं ना उसे 13% दे देते हैं, तो 1% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा अप टू 15,000. और उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो ऑलरेडी 13% है. हाँ ठीक है, अभी नहीं ठीक लग रहा है मेरे को. पल्लवी समझ में आ रहा है? भाई ये जो इतना अर्निंग है 7,650 विच आई एम अर्निंग, it is because of up to 15,000 I am getting a commission of 12%, beyond 15,000 I am getting a commission of 13%. So my earning is because of these two factors. Up to 15 12% commission, and beyond 15 the commission is 13%. So for making our calculation easy, suppose if I am saying that please provide me flat commission of 13%, means beyond 15 it is already 13, but before 15 instead of providing me 12% commission, provide me 13% commission. So in that scenario my earning will increase, and increase by what amount? So increase by 1% of 15,000. My earning will increase na, because up to 15,000 I am getting 12% commission. Now in new formula or in new setup or in new negotiation I am getting 13% also up to 15,000, and beyond 15,000 it is already 13%. So earlier I was getting 12%, now I will get 13%. So 1% of 15,000 will be extra to my earning. So first of all what we will do, we will calculate 1% of 15,000. So 1% of 15,000 is 150. Okay, so in the scenario of 12% and 13%, my earning was 7,650. But in scenario of 13% and 13%, my earning will increase. See here, 12% up to 15,000 and 13% beyond that. But in second case, flat 13% throughout. So my earning will increase 7,650 plus 1%, that is the difference here, 12% and 13%, 1% of 15,000, that is 150. That comes to be 0, 0, 7,800. Okay, it means that if I am getting a 12% up to 15,000 and 13% beyond that, then my earning is 7,650. But if I am getting a flat commission of 13% throughout my sale, then my earning would be 7,800. समझ में आया? नहीं आया? नहीं 50, अभी तक तो 12% मिल रहा है, उसके बाद उसे बियॉन्ड 15 उसे ना इंसेंटिव मिल रहा है 1% का. इसका मतलब बियॉन्ड 15,000 उसे इंस्टेड ऑफ 12% 13% मिल रहा है. भाई मोटिवेट कर रहे हैं ना हम सेल्समैन को कि 15,000 तक तो आपको 12% मिलेगा, लेकिन अगर आप 15,000 से ऊपर का सेल कर रहे हो तो जितना भी अमाउंट 15,000 से ऊपर का आप सेल कर रहे हो उस पर हम आपको 12% ना देके वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू 13%. अभी समझ में आया? तो अभी मैंने क्या किया वो समझ में आया? नहीं आया? देखिए आकाश, मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा.
7,800 तक आ गया है। देखिए है क्या इसमें, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सेल्समैन हूँ, तो अभी जो कंडीशन है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुआ है वो ये है कि 15,000 तक मुझे 12% कमीशन मिलेगा, और अगर 15,000 से ऊपर का मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को कमीशन 13% का मिलेगा। पहले मेरे को 12% का मिल रहा था अप टू 15, लेकिन अगर 15,000 से ऊपर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को कमीशन 12,000 का मिलेगा। ठीक है, एक तो वो केस हो गया। उस केस में मेरी अर्निंग कितना है, 7,650। अब आप दूसरा केस समझिए। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं एक सेल्समैन हूँ, मेरे को ये कंडीशन मिला, अंजलि है, अंजलि को अगर मैं बोल दूँ कि आपको फ्लैट 13% कमीशन मिलेगा, आप जितने का भी प्रोडक्ट सेल करो, तो बट ऑब्वियस है अगर मैं और अंजलि दोनों लोग सेम वर्थ का प्रोडक्ट सेल किए हैं तो मेरे से ज़्यादा अंजलि की अर्निंग होगी। अंजलि की अर्निंग क्यों ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट तो मैंने भी उतने रुपए का सेल किया, अंजलि भी सेल की है, लेकिन मेरे को शुरुआत के 15,000 में 12% मिल रहा है और 15,000 के बाद मेरे को 13% मिल रहा है। बट अंजलि को शुरुआत के 15,000 में भी 13% मिल रहा है और बाद में तो 13% मिल ही रहा है। सो इन दैट सिनेरियो अंजलि की इनकम मेरे से अधिक होगी कि नहीं? होगी। और वो अधिक क्यों होगी? क्योंकि शुरुआत के 15,000 में आपको 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है जो कि मेरे को नहीं मिल रहा है। उतने ही अमाउंट से तो आपकी एक्स्ट्रा होगी इफ़ मैं और आप, हम दोनों अगर सेम वर्थ का प्रोडक्ट, सपोज करिए 1 लाख का प्रोडक्ट ये भी सेल कर रही है, 1 लाख का प्रोडक्ट मैं भी सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को अप टू 15,000 कितना अर्निंग हो रहा है, 12%। और 15,000 के बाद जो रिमेनिंग 85,000 है उस पर मेरे को 13% मिल रहा है। लेकिन अंजलि को क्या है कि शुरुआत के 15,000 पे भी 13% मिल रहा है और रिमेनिंग 85,000 पे भी 13% मिल रहा है। सो इसका मतलब अंजलि की अर्निंग बट ऑब्वियस है मेरे से ज़्यादा होगी। सपोज करिए अगर 1 लाख का प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, हम और अंजलि दोनों लोग अगर 1 लाख का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अंजलि को तो थ्रू आउट प्रोडक्ट 1 लाख के सेल पर 13% मिल गया, लेकिन मेरे को क्या हुआ, शुरुआत के 15,000 में मेरे को सिर्फ 12% मिला और बाद में रिमेनिंग 85,000 पे मेरे को भी 13% मिल गया। तो अंजलि का तो ज़्यादा हुआ, और कितने अमाउंट से ज़्यादा हुआ, तो 1% ऑफ 15,000, क्योंकि 15,000 के बाद तो जो रिमेनिंग 85,000 है मेरा और अंजलि दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इन दिस मैनर ओनली। अर्लियर ही वॉज गेटिंग 12% अप टू 15,000 and beyond 15,000 he is getting 13%. So what I am saying that rather than this differentiated method, suppose if we are going to provide that salesman a flat discount of 13%, so उसका अर्निंग जो भी है वो बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, तो 1% ऑफ 15,000। वही तो डिफरेंस आएगा ना। सपोज करिए ये सेल्समैन है, सपोज करिए सेल्समैन है यही हमारा, तो ये 15,000 में इसको 12% मिल रहा है और 15,000 के ऊपर मान लीजिए ये 50,000 का सेल कर रहा है। सपोज करिए सेल्समैन 1 है, ये भी 50,000 का सेल कर रहा है, और सेल्समैन 2 है, ये भी 50,000 का सेल कर रहा है। एग्जाम्पल है, ठीक है। सो अप टू 15,000 इसे 12% मिल रहा है और रिमेनिंग 35,000 पे इसे 13% मिल रहा है कमीशन। ये सेल्समैन है S2, इसका क्या है, इसको शुरुआत के 15,000 और रिमेनिंग 35,000, इन दोनों पे उसे 13% मिल रहा है। तो इनमें से अर्निंग किसकी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, 1% ऑफ 15,000, क्योंकि रिमेनिंग 35,000 पे तो देखिए दोनों का सेम है, सेम है। सो जो भी ज़्यादा होगी वो अप टू 15,000 वाले में ज़्यादा होगी, और वो भी कितना कितना ज़्यादा होगी, इसकी सैलरी S2 की ज़्यादा होगी, कितना ज़्यादा होगी, 1% ऑफ 15,000, इतना ही होगी ना ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेल्समैन को हम उस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं,
हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो अभी ये जो 7,650 है, ये इसकी अर्निंग है, ठीक है। ये अर्निंग क्यों हो रही है? बिकॉज अप टू 15,000 ही इज अर्निंग 12% एंड बियॉन्ड 50,000 जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे उस केस में 35 है, इस केस में जो भी एक्स्ट्रा है उस पर वो 13% पा रहा है। दिस अर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू कमीशंस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इसकी अर्निंग है, इसमें हम सिंपल कर देते हैं ना कि ये जितने भी प्रोडक्ट वर्थ सेल कर रहा है वो उस पर फ्लैट 13% पा रहा है। सो देखिए 15,000 से ऊपर तो ऑलरेडी 13,000 पा रहा था, 15,000 तक ये 12% पा रहा था, लेकिन इस केस में ये 15,000 तक भी ये 13% पाएगा। इट मीन्स दैट कि हम पहले 1% ऑफ 15,000 कैलकुलेट कर लें, जो कि आया था हमारा 150। सो अगर हम इसमें 150 ऐड कर दें तो हम बोल सकते हैं ना कि 13% ऑफ द टोटल सेल फ्लैट कमीशन, क्योंकि जो 1% कम आ रहा था जिसको हमने इंक्रीज़ किया है, पहले 12 था, अब अगर हम 13% इसको फ्लैट कर देते हैं तो इसकी अर्निंग जो है वो 150 से बढ़ जाएगी। ओके, अब क्लियर हो गया है? मेरे ख्याल से हो गया होगा। सो अब इसकी अर्निंग कितनी हो गई इस केस में? द अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज, अब हमें पता है अर्निंग इतनी है और ये अर्निंग इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 13% कमीशन, 13% कमीशन ऑन नेट सेल। तो नेट सेल नहीं निकल जाएगा हमारा। हाँ, सी जब हम क्वेश्चन को थोड़ा बहुत रिफॉर्म करेंगे ना तो फिर हमारे स्टेप्स सारे खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा था, हमने उस क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन किया और उस मॉडिफिकेशन को बैलेंस करने के लिए जो मॉडिफिकेशन करना था हमने वो भी किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो दिया था उसको हमने थोड़ा सा टिल्ट किया। उस टिल्ट करने से जो हमारी वैल्यू में चेंज आ रही थी उसको भी हमने एडजस्ट कर दिया 150। अब जब हमने क्वेश्चन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं वो तो चेंज होंगी ही। हमने उस वैल्यूज़ को चेंज कर दिया और उसके बाद क्वेश्चन अपने हिसाब से कर लिया। तो ये आसान तरीका होता है। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन सब कुछ बच जाता है। अभी देखिए 1% ऑफ 15,000 कैलकुलेट करने में आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप सीधे 150 कर लोगे। 150 को तुरंत ऐड कर दिया, 7,800 हो गया। अब आपको पता है दिस 7,800 इज़ द रिजल्ट ऑफ 13% ऑफ द टोटल सेल। तो अब हम टोटल सेल निकाल लेंगे। देखिए 13% रिप्रेजेंट 7,800, सो 1% विल रिप्रेजेंट 7,800 अपॉन 13, so 100% will represent, because total sale is 100%, so 100% is represented by 7,800 upon 13 into 100. ओके, हो गया ये? आई थिंक दैट 6 से हो जाएगा। 60,000, हाँ 60,000 इज द टोटल सेल। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पल्लवी बताइए, कहीं पे भी डाउट है तो फिर से बताइए, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ चलिए ठीक है, आई विल, आप लोग को समझ में आ गया है? क्लास के बाद मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है? बाकी तो समझ में आया ना? चलिए वेट फॉर अ मिनट। देखिए सेम है द क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो। A salesman is allowed a 15 plus half% commission on the total sale made by him and a bonus of 0.5% on the sale over 10,000. सेम है, मतलब up to 10,000 he is getting a commission of 5.5% and beyond 10,000 he is getting a commission of 6%.
क्योंकि उसको 0.5% ही इज गेटिंग इंसेंटिव. ओके, सो इफ हिज टोटल अर्निंग इज 1990, फाइंड द टोटल सेल. सो ये जो दो डिफरेंशियल परसेंटेज हैं, हम इन्हें क्या करेंगे, अप टू 10,000 हम 0.5% कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे हमने कैलकुलेट करके इसके अर्निंग में ऐड कर देंगे, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं दैट ही इज गेटिंग अ फ्लैट कमीशन ऑफ 6%. तो जो भी 0.5% ऑफ 10,000 है वो 50 रुपीज़ है. टोटल इसके अर्निंग में हमने ऐड कर दिया, मतलब कितना हो गया, 2040 रुपीज़. अब ये 2040 रुपीज इज द रिजल्ट ऑफ 6% कमीशन ऑन द टोटल सेल. सो हमने कैलकुलेट कर लिया 6% कमीशन, 6% ऑफ टोटल सेल इज दिस, तो टोटल सेल विल बी 34,000. मैं आपको बताता हूँ ये. अंजलि, इज इट ओके? आकाश, ठीक है. अच्छा सी, अब इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे. द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय दिस, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज. हैव यू गॉन थ्रू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड सी how easily we can comprehend such type of question through this line diagram. See, up till now we haven't used any formula. Okay, लगभग अब परसेंटेज अपने एंड की तरफ जा रहा है. हाँ, वो कॉन्सेप्ट की अभी ज़रूरत नहीं होगी, वो मैंने बता दिया था, वो मैं आपको बताऊंगा अभी क्लास के बाद. आप दोनों लोग को आज मतलब क्लास में 10:30 पे ओवर करता हूँ या 10:20 पे, और वो दोनों डाउट आप लोग का 5-5 मिनट में क्लियर हो जाएगा. Because it is very easy to explain anybody on notebook rather than to explain here, because this session is also recorded now, so I have to maintain certain decorum and language. Okay, so see here. Acha, have you seen such type of question? See, there are 3 to 4 variant of this question and I am going to discuss each variant one by one. Okay, so this easiest one is this, slightly tougher, and then the last one. After attending that question you can attempt any type of questions belonging to this category. Okay, within 4 to 5 questions. Okay, see what question is saying that. First of all, leave the question. Acha, no, have a look over it. The price of sugar is increased by 20%. By how much percent the consumption should be decreased so that expenditure will not increase? See, the case is that there is a family who is spending certain amount on sugar consumption. Suppose I belong to a family where it is mandatory that we are not required to spend more than 100 rupees on sugar consumption. Means my family has fixed only we are going to spend 100 rupees on sugar consumption, but the price of sugar has increased in the market. Okay, so tell me, if my family is not allowing to increase the expenditure on the sugar, then what will happen? We have to decrease our sugar consumption. That is the only case ना, because घर से हमें फिक्स है कि इतने रुपए ही शुगर पे खर्च करना है. अब शुगर का प्राइस बढ़ गया, हमें पैसा उतना ही खर्च करना है. इट मीन्स दैट वी हैव टू डिक्रीज आवर कंजम्पशन. So the question is asking that price has increased by certain percent, which is mentioned in the question, but you don't have to increase your expenditure on sugar, so you have to decrease your consumption. So by what amount you are going to decrease your consumption if the price of the sugar has increased by 20%? Question समझ में आ गया? एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस हाइक हो गया तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा. तो प्राइस अगर 20% से हाइक हुआ है तो आपको कंजम्पशन कितने % से कम करना पड़ेगा. ओके, क्वेश्चन अच्छे से कॉम्प्रीहेंड हो गया. नाउ सी, लेट अस सपोज आवर ओरिजिनल कंजम्पशन इज 100. ओके, हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है? 100. कंजम्पशन मानिए या एक्सपेंडिचर मानिए. ओरिजिनली वी आर गोइंग टू एक्सपेंड 100 रुपीज ऑन शुगर. Okay, now the price of sugar has increased. Okay, so whatever sugar we are purchasing in 100 rupees, now we are going to purchase in 120 rupees. Okay, sugar का price increase हो गया है. It means that whatever amount we are purchasing in 100 rupees, now if
we want to purchase that same amount, then we have to spend 120 rupees. Okay, it means that the price has increased by 120, or we can say that our expenditure will increase to 120 if we are going to purchase the same amount, isn't it? Because the price of sugar has increased by 20%. So earlier price was 100, now for the same quantity the price become 120. 20% was the increment, but we are not allowed to expend 120, we are allowed to expend only 100, because it is mentioned in the question that expenditure will not increase. So earlier we are expending 100 rupees, now also we are going to expend 100 rupees. Okay. So what is the percentage decrease in our consumption? Suppose if we are getting 5 kg of sugar in 100 rupees, now we will get 5 kg of sugar in 120 rupees. So यानी our consumption is, this represent the same consumption and this represent the same expenditure. Try to understand. Earlier we are expending 100 rupees for 5 kg, now we have to spend 120 rupees for 5 kg, means consumption is same or the amount of sugar is same. But focus on this column, earlier we were spending 100 rupees, now also we have to spend 100 rupees only. It means that definitely if here we are getting 5 kg, it means that in 120 also we are getting 5 kg. But in 100, because of the change in the price of sugar, definitely in this 100 we are getting some amount of less sugar. It means that the amount of sugar will be less than 5 kg. So our consumption has decreased by what amount? See, it is 100, it is 120, decreased by 20. So we always calculate increase or decrease with respect to original one. Original is 120 because here also 5 kg, here also 5 kg. So 20 upon 120 into 100, that will be the decrease in our consumption. समझ में आया कि नहीं? The price of sugar has increased by 20%. So suppose earlier we are spending 100 rupees on 5 kg sugar. Now that 5 kg sugar cost 120 rupees because price has increased. So first column represents this simple thing. The second column also represents this simple thing that we are not going to expend more than 100 rupees. So 100 there also, 100 here also. But definitely now since the price has increased, so in 100 rupees we are not going to get 5 kg of sugar. It means that we are getting some less quantity of sugar, and that less quantity is 20 unit, because it is 100, now that is 120. So 20 upon 120, because in denominator always we keep original. So 20 upon 120 into 100. Clear है? पल्लवी जी clear है? आकाश अंजलि clear है? So that is 20 upon 120 into 100 comes to be 16 whole 2 by 3%. It means that the price has increased by 20%. So we have to decrease our consumption by 16 whole 2 by 3%. Isn't it? सही है? Okay. पक्का? 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं. अब धीमे धीमे वैल्यूज चेंज होंगी. ठीक है? Okay. Now let's move to this question. What question is saying that the price of sugar is decreased by 30% now. Since here the price is decreased, so earlier it was 100, now it becomes 70. Earlier we are getting 5 kg of sugar in 100 rupees, now we will get the same quantity of sugar, that is 5 kg in 70 rupees. Then by how much percent the consumption will increase so that expenditure remains the same. Even in that case also my family is saying नहीं अभी भी हम 100 रुपए ही खर्च करेंगे. So definitely in our family the consumption of sugar will increase. So 100, 100,
Earlier also my family is spending 100 rupees, now also we are spending 100 rupees. So what is the increase in the consumption? 30. What is the original? 70. So 30 upon 70 into 100, that comes to be 42 whole 6/7%. क्लियर है आकाश? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now see what this question is saying. The price of sugar is decreased by 30%. By how much percent the consumption is increased so that the expenditure will decrease by 10% only. अभी तक क्या हो रहा था हमारा? Expenditure was remain constant. Now expenditure भी vary होने लगा. So see here. First of all, tell me the question is correct in itself or not. The price of sugar is decreased by 30% and the expenditure is decreased by 10% only. Price is decreased by 30%, but in respect to that decrease in the price, we have decreased our expenditure by 10% only. So in that scenario, whether our consumption will increase or decrease? Our consumption will, see, price is decreased by 30%. Price is decreased by 30%, but our expenditure is decreased by only 10%. So overall, our consumption will increase or decrease? Consumption will increase. Why? See, this is the constant case where the price of sugar and our expenditure is same. Now, the price has decreased by 30% and our expenditure is decreased by 10% only. So 20% is the difference. It means that our consumption will increase. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? प्राइस 30 रुपए से घट गया, 100 रुपए का कोई सामान था, अब वो 70 का मिलने लगा, लेकिन हम अभी भी 90 रुपए है हमारे पास, तो हम उस सामान को ज़्यादा खरीदेंगे कि नहीं? पहले 100 रुपीज़ में सामान मिल रहा था, 100 रुपीज़ हमारे पॉकेट में था, अब क्या हुआ? उस सामान की वैल्यू घट के 70 रुपीज़ हो गई. या मान लीजिए 100 रुपये का एक टॉफ़ी है जो 100 टॉफ़ीज़ मिल रहे हैं. अब वो पैकेट का रेट, पहले हमारे पास 100 रुपीज़ था तो हम 100 का 100 रुपीज़ देते थे और वो 100 टॉफ़ी खरीद लेते थे, 100 टॉफ़ीज़. अब क्या हुआ है कि टॉफ़ीज़ का रेट 30% कम हो गया. इट मीन्स दैट अब वही 100 टॉफ़ीज़ हमें 70 रुपीज़ में मिल रही हैं, लेकिन अभी भी हम टॉफ़ी पे जो खर्च कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 90 रुपीज़ कर रहे हैं. तो इसका मतलब अब 90 रुपीज़ में हमें 100 से ज़्यादा टॉफ़ीज़ मिलेंगी कि नहीं? क्योंकि अब टॉफ़ीज़ का रेट तो 70 हो गया है, लेकिन है हमारे पास 90, तो 70 में हम 100 पा जाएंगे, लेकिन 20 में कुछ और भी टॉफ़ीज़ एक्स्ट्रा पाएंगे. इट मीन्स दैट हमारा कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है टॉफ़ियों का. ठीक है, सेम केस इज़ हियर. Price is decreased by 30%, but in lieu of this decrement in the price, we are decreasing our consumption by 10% only. It means that overall our consumption will increase. Okay, so see here, original was 100, new price is 70, original expenditure was 100, new expenditure is 90 because we have decreased our expenditure by 10%. So what is the net? Increase or decrease? Net is the increase of 20 upon 70 original. So 20 upon 70 into 100, it means that our consumption will increase by 28 whole 4/7%. Is it clear? पिछले क्वेश्चन में दोस्त इसको सेम रखा था. अपना कंजम्पशन जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है. हाँ, उसमें भी यही पूछा था, इसमें भी यही पूछा है. देखिए ना, कंजम्पशन वेरी हो गया ना, उसमें 40 समथिंग था, इसमें 28 है, सेम है वैल्यू. इसमें प्राइस शुगर कितने से डिक्रीज हो रही है? 30 से. इसमें शुगर का प्राइस किससे डिक्रीज हो रहा है? 30 से ही. लेकिन इसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, लेकिन इस केस में क्या बोल रहे हैं, हमारा
एक्सपेंडिचर भी हमने डिक्रीज किया है 90 से, तो हमारी कंजम्पशन तो बढ़ेगी। हाँ किया है ना, ये 20 हमारा कैसे आया, न्यू एक्सपेंडिचर, तो यूज़ तो हुआ ना, तभी तो 20 आया। और जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक्सपेंडिचर सेम का सेम था, तो इसको हमने यूज़ किया, 100 माइनस 70 तो 30 आया। व्हाट हैपेंड पल्लवी, सही है, समझ में आ रहा है ना? एक बार आप इसको गो थ्रू करिएगा ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद तो फिर मैं हूँ ही। सो ये वाला केस आ गया। नाउ मूविंग टू अनदर केस, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। अभी तक डिक्रीज हो रहा था, नाउ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 100, नाउ इट्स बिकम 120। बाई हाउ मच kg of consumption? Now see, the question has changed little bit. What question is saying that, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम उसी तरह से करेंगे। अब सी हियर वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड। जो अब मेथड हम लोग पढ़े हैं ना, पहले यूनिटरी मेथड पढ़े हैं, फिर जो कल का कंसेप्ट था एक, उसकी अभी ज़रूरत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। अब वो जो भी कॉन्सेप्ट्स थे छोटे छोटे, वो सबका यूज़ होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द कंसेप्ट विच वी रेड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो सी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, समझ में आ गया। बाई हाउ मच kg ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5% ओनली। एक्सपेंडिचर 5% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 रुपीज़ था, अब 105 हो गया। अब ये बताइए, प्राइस जो है वो 20% से बढ़ गया और हमने एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% से बढ़ाया, तो ओवरऑल हमारा कंजम्पशन डिक्रीज होगा। भाई जो प्राइस है मार्केट में वो तो 20% से बढ़ गया, लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमने सिर्फ 5% से बढ़ाया, तो इसका मतलब ओवरऑल वी आर गोइंग टू कंज्यूम लेस। ओके, सो देखिए ये डायग्राम बन गया। इट मीन्स दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन 80 to 90% you solved if you are able to draw this diagram correctly. So earlier it was 100, now the price has increased, so it become 120, and we have increased our expenditure by only 5%. It means that 105. So it is 120, it is 105. It means that our consumption has decreased by 15 unit. So in percentage, 15 upon 120 into 100, it means that 12 whole 1/2%. ये हमारा क्या हुआ, कंजम्पशन डिक्रीज हुआ। इतने परसेंट से ही डिक्रीज हुआ ना, पक्का। अब देखिए कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूं, सेम वही चीजें हैं। 12 होल 1/2% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो इन फ्रैक्शन इट विल 1/8। हाउ, 2 into 12 plus 1, we are removing the percentage, okay, 1/8. Since minus, why minus? Because our consumption is decreasing. अब denominator always represent the original quantity. It means that our original consumption was 8, new consumption will be 7. Okay, it means that original consumption is 8, new consumption will be 7, and what is the change in the consumption? Change is of 1 unit. Okay, now what is saying in the question, what is mentioned in the question, that by how much kg of consumption is decreased, how much kg of consumption is decreased. So consumption is decreased by 1 when the original consumption was 280 kg. Original consumption was 280 kg, but here our original consumption was 8. It means that our 8 is questions 280. It means that our 1 will be
questions 35 kg. Our one will be questions 35 kg. And our consumption is decreased by 1 only. It means that our consumption is decreased by 35 kg. देखिए कुछ नया हमने नहीं यूज़ किया है, ये सब चीज़ तो हमने पहले पढ़ा था ना परसेंटेज पार्ट 1 में, बस अब उसी का एप्लीकेशन है. ऐसा थोड़ी है एक बार जो पढ़ लेंगे वो दोबारा नहीं आएगा, वो सब मिक्स होके ही आएंगे. तो आपके वो कंसेप्ट क्लियर अगर हैं तो आप फटाफट क्वेश्चन कर लोगे. अरे यहाँ तक तो अभी मैं पढ़ा, इसके आगे आप भूल जाओ ना. यहाँ का ये सब चीज़ तो हमने पहले पढ़ा है ना, सेम तो वही चीज़ किया है. अब कंफर्टेबल हो आप लोग तो बताओ, आगे बढ़े. डाउट है तो अभी इसको फिर से बताएं. इसका आंसर क्या है? 35 kg. वन यूनिट है. भाई हाउ मच kg ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज? कंजम्पशन इज डिक्रीज बाई 1 ओनली. 1 हमने कैलकुलेट कर लिया था 35, तो 35 होगा. पल्लवी आकाश नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. नाउ सी, सारे तरह के जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं ना, या जितने भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ना, सारा तरीका डील हुआ है यहाँ पे 1 by 1. सही है. नहीं 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 नहीं. चलिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 30%. 100 बिकम्स 130. ठीक है, ये फिगर समझ में आ रहा है ना. 100 हो गया 130. ड्यू टू दिस अ फैमिली यूजेस 40 kg लेस शुगर. हटा दीजिए. सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10% ओनली. अर्लियर दे आर स्पेंडिंग 100 rupees, नाउ दे आर स्पेंडिंग 110. So definitely the price has increased by 30%, and in respect to that they have increased the expenditure by 10% only. It means that definitely they are going to consume less. So 100 become 130, expenditure become 110. So by how much percentage they are going to consume less? So 20 upon 130, that is मतलब directly we are converting it into fraction. 2 by 3, 2 by 13, and since the consumption is decreasing, it means that original consumption is 13, the decrease of 2 or the new consumption will be 11. 13 minus 2, 11. Now what it is saying that due to this the family uses 40 kg less sugar. 40 kg less sugar, it means that our 2 represent 40 kg, because 2 is only the decrement, and in question it is mentioned that they have decreased their consumption by 40 kg. It means that our 2 will represent 40. It means that our 1 is equal to 20. अंजलि क्या हुआ? पहले हम लोगों ने डिक्रीज का फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, डिक्रीज हो रहा था तो हमने 11 को कंसीडर किया था कि हाँ इतना 11, तो हमको 11 इक्वेट्स टू 40 करना चाहिए ना, क्योंकि चेंज इतना हो रहा है ना. 11 क्या होगा हमारा फाइनल कंजम्पशन. हाँ, ये 40 क्या है पढ़िए एक बार. 40 इज द डिक्रीज. चेंज इतना. हाँ, कितना चेंज आया है. 40 रिप्रेजेंट दैट थिंग. हाँ, अगर फाइनल क्वांटिटी दिया होता तो हम जरूर 11 इज इक्वल टू करते. यहाँ तो चेंज बताया है ना, तो इट मीन्स दैट 2 इज इक्वल टू 40, 1 इज इक्वल टू 20. सो फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन. ओरिजिनल इज 13. So if 1 is equal to 20, so original will be 260 kg. Clear है? Shall we proceed to next question? आकाश, पल्लवी, अंजलि. आइए, ये और फिर क्वेश्चन आ गया एक. ठीक है, ये देखिए हम ये क्या है ना, बड़ा कॉमन सा टॉपिक है ये, शुगर प्राइस ये सब वाला. तो इसके मैंने जितने भी वेरिएंट थे, आई हैव टेकन ऑल द वेरिएंट इनटू कंसीडरेशन.
ताकि ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद भी कुछ बचा रह जाए। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%। अब जैसा क्वेश्चन, वॉट एवर क्वेश्चन इज सेइंग, वी हैव टू डू दैट ओनली। 100, नाउ इट्स बिकम 70, डिक्रीज बाई 30%। ड्यू टू दिस द फैमिली परचेज 32 kg मोर शुगर। जो बोल रहा है वो सुनते रहते हैं बस। सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 16% ओनली। एक्सपेंडिचर इनका 16% ही डिक्रीज हो रहा है। सो इट मीन्स दैट इट बिकम्स 84। तो डेफिनेटली इनका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ 13 से और इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज किया सिर्फ 16% से। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कंज्यूम मोर शुगर। कितना मोर? तो डिफरेंस क्या हुआ? 14 divided by 70, that is 1/5 if we are going to convert it into fraction. Okay, so it will become 1/5 plus sign. It means that original consumption was 5 and the consumption, new consumption is 6 and the change of 1. What here it is mentioned that a family purchased 32 kg more. It means that 1 represent 32 kg. So find the current consumption. Current consumption is new one 6. So 6 will represent 32 into 6. अब देखिए कोई भी आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे ओरिजिनल, हाँ ये देखिए हमने क्या हुआ ना कि एक स्टेप, हाँ क्या चीज़ हाँ देखिए हमने इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट ही नहीं किया है। अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले इंटू 100 करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर हम क्या कर रहे थे, आप लोगों को समझाने के लिए हमने पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो घूम फिर के क्यों आना? अब मेरे को लगने लगा कि आप लोग समझ गए हो, तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज वाला स्टेप ही हटा दिया और इसको कन्वर्ट, इसको काटिए ना 5 से, तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा और 5 2 जा 4। यार वो आप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इन ऑर्डर टू मेक और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परसेंटेज, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया ना वो परसेंटेज के रिलेशन में समझाया है कि जो भी परसेंटेज आएगा, जहाँ परसेंटेज दिखे उसको फ्रैक्शन में बदल लो। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन को आप लोगों के लिए परसेंटेज में बदल रहा था, उसके बाद उसको, क्योंकि क्वेश्चन भी इसके पहले वाले ऐसे ही पूछे रहे थे ना कि भाई हाउ मच परसेंट विल इंक्रीज, परसेंट विल डिक्रीज, तो मैं परसेंट में कन्वर्ट कर रहा था। देयर आफ्टर मैं परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इस क्वेश्चन में मेरे को लगा आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो मैंने डायरेक्ट ही इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि मैंने डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में ही रखा। अभी समझ में आया? हाँ, आप क्या पूछ रहे थे, ये इसी तरह से आएगा कि नहीं? यार वो मैं आपको बताने के लिए कर रहा था। अभी जैसे क्या है कि अब मैं आपको ये बताता कि यार ये 14/70 है, ये 1/5 है, +1 है। आप बोलोगे सर ये फ्रैक्शन कब से प्लस और इसमें आ गया? तो हाँ हाँ जब इस तरीके से हो रहा है तो सॉल्यूशन तो इस तरीके से निकल रहा है, फ्रैक्शन में करके इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू। पर जैसे अब इसमें तो आपने एकदम से परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया, पर वो जो मतलब वो टेक्निकल वो जैसे कैलकुलेशन वाली, हाँ हाँ मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज वो प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपको वो करने में? वो मतलब वो प्रॉब्लम ही हो रहा है, मतलब वो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा है, इसको कन्वर्ट करना। ये तो आराम से कन्वर्ट होगा ना। हाँ वो ये बोल रहा है परसेंटेज कैसे, आप एक और बार नीचे वाले क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर। अगर आप परसेंटेज लेके भी कन्वर्ट करते तो हमारी वो वैल्यू 1/5 ही आ जाती। हाँ देखिए मैं करके दिखला रहा हूँ। मैं असल में एक्चुअल में मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ जो मेरे को समझ में आ रहा है। शायद आप यही पूछ रहे हो। 14/70 इंटू 100 किया हमने,
20%. When we are going to remove the percentage, हाँ सर, पर जब वो जैसे इससे ऊपर वाला था हाँ 28/4 हाँ एक सेकेंड, उस तरह का ये वाला इसके ऊपर, ये जैसे बना हाँ इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या आ गया था, 15/120 इंटू 100। अब लग गया परसेंटेज, ओके 2 से काटते हैं, 2 5 6 में आ रहा है, किस में आ रहा है, तो ये 120 ही है ना, 15/120 इंटू 100। ओके इसको फिर से करते हैं क्लीन, 15 इसको काट रहे हैं, वहाँ पे 2 में आ रहा है, तो 2 6 12, 2 5 75 75/6%। इसको कन्वर्ट करें हम तो 6 1 6, 6 कटेगा तो 3 से काट देते हैं, 3 2 6 और 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 25 को हम हाँ ये देखिए, ये इसको भी कर देते हैं, 20/70 परसेंटेज। ओके कितना बचा, 200/7%। अब कितना होगा, मान लीजिए 7 2 14, 60, फिर 7 7 49 होता है, 7 8 56, रिमाइंडर 4। ठीक है, तो ये तुरंत हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग करेंगे ना, मतलब ये दिख रहा है यार वैसा, बट ऐसा है नहीं। हाँ मतलब दैट्स वाई मैं अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था ना, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड ना, टेक रैंडम नंबर, खाली टाइम व्हेन यू हैव एनी स्पेयर टाइम, टेक एनी रैंडम नंबर, ट्राई टू मल्टीप्लाई इट, ट्राई टू डिवाइड इट, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। ओके, नथिंग मोर देन दैट। ओके तो ये अभी समझ में आ गया। सो हियर 1 विल रिप्रेजेंट 32 kg। क्यों? क्योंकि जो भी इनका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है वो 32 kg से हुआ है, और हमारा इंक्रीज 1 शो कर रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 32। फाइंड द करेंट कंजम्पशन, करेंट कंजम्पशन इज 5 + 1 6, 6 × 32 192 kg। डन, आगे बढ़े। अभी भी है। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसमें सभी पार्ट्स को समराइज कर दिया है। The price of sugar is decreased by 20%, 100 become 80. Due to this, the family purchases 20 kg more sugar for ₹400. इन्होंने सब कुछ पूछ दिया है। Find the original consumption, original price, current consumption and current price। इसका मतलब उनका एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है। So 100 to 100 रहा, फिर ये इनका कंजम्पशन इंक्रीज हो गया 20 से, 20/80 परसेंटेज छोड़िए, वो मैंने स्टेप स्किप कर दिया है, डायरेक्टली हम आ जाते हैं फ्रैक्शन पे, +1/4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर +1/4 है, इसका मतलब इनका ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है 4, न्यू कंजम्पशन कितना होगा 5, चेंज कितना हुआ 1। अब इसमें क्या है,
ड्यू टू दिस द फैमिली परचेजेस 20 kg मोर शुगर। तो 20 kg मोर शुगर मतलब 1 is 20। तो जैसे 1 is equal to 20 मिला, हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन मिल गया 20 into 40 मिल गया। न्यू कंजम्पशन कितना होगा 5 into 20 100 kg, मतलब अभी 80 kg है और न्यू कंजम्पशन कितना होगा 100 kg। अब देखिए ज़रा यहाँ पर इन्होंने एक थोड़ा सा ज़बरदस्ती का एक पार्ट और घुसा दिया है। अब देखिए यहाँ पे ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हो गया 40 into 280 kg। न्यू कंजम्पशन कितना होगा 4 + 1 5 और 1 is equal to 20। सो न्यू कंजम्पशन कितना हो गया 100 kg। अच्छा, क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20% ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेजेस 20 kg मोर शुगर फॉर ₹400। कहने का मतलब है अर्लियर वो जितना भी रुपीज़ एक्सपेंड कर रहे थे उतना ही अभी भी ये कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर देखिए 100 का 100 ही है, ठीक है। सो अब वो 20 kg मोर शुगर परचेज कर रहे हैं। सो फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन निकाल लिया, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस वो कैलकुलेट करना है, करेंट कंजम्पशन निकाल लिया और करेंट प्राइस करना है। ओके, सो हाउ मच दे आर गोइंग टू स्पेंड 400। सो ओरिजिनल कंजम्पशन 80 था, न्यू कंजम्पशन 100 हो गया, एंड हाउ मच अमाउंट दे आर स्पेंडिंग 400। सो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि दे आर स्पेंडिंग ओवर आउट 400 रुपीज़ ओनली। तो पहले 400 में 80 kg मिल रहा था, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ शुगर 400 डिवाइडेड बाई 80। नाउ 400 में ही इनको 100 kg मिल रहा है, मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 4। तो अर्लियर द प्राइस ऑफ शुगर वॉज 5 रुपीज़ पर kg, नाउ द प्राइस ऑफ शुगर इज 4 रुपीज़ पर kg। क्लियर है, खत्म, आगे चलें। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। वेट फॉर अ मिनट। चलिए ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज़ पर kg। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझना, ठीक है। मैंने जितने भी वेरिएशन है उसको कैटर किया है। सो अ रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज़ पर kg इनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर फॉर ₹16। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। A reduction of 2 rupees per kg enables a man to purchase 4 kg more sugar for ₹16। ठीक है, सो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। सो हमने क्या मान लिया, ओरिजिनल प्राइस x। आई थिंक दैट दिस इज द सेकेंड टाइम वी आर यूजिंग x। सो ओरिजिनल प्राइस हमने मान लिया x। सो न्यू प्राइस कितना हो गया x - 2, because it is said in the question a reduction of 2 rupees per kg। अब ध्यान से समझिए, पहले कितने का प्रोडक्ट मिल रहा था x रुपीज़ का, अब प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है x - 2 का। व्हाट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट कि इफ़ वी हैव 16 रुपीज़, सो हम पहले जितना परचेज कर रहे थे और अब जितना परचेज कर रहे हैं उसमें 4 kg का डिफरेंस आ रहा है, या 4 kg हम ज़्यादा परचेज कर पा रहे हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं? वी हैव 16 रुपीज़ इन आवर पॉकेट, वी वेंट टू अ शॉप, अर्लियर द प्रोडक्ट कॉस्ट x रुपीज़, सो वी आर परचेजिंग एनी अमाउंट, बट नाउ सिंस द प्राइस इज डिक्रीज बाई 2 रुपीज़, नाउ ऑल्सो वी हैव 16 रुपीज़ इन आवर पॉकेट, वी वेंट टू द शॉप एंड वी परचेज्ड that particular article, and what we find out that whatever we purchased earlier, now we are purchasing
the same article but its quantity is 4 kg more. Question is understood? So they are asking what is the original price or the changed price. So हाँ ऐसे क्वेश्चनों में तो ऑप्शन से हिडन प्राइस तो लग जाता है। एकदम लग जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑप्शन, वो लगेगा ही, अदरवाइज हम उसमें क्वांटिटी की देखिए, या तो क्या आप पूरे क्वेश्चन को ही आप हिट एंड ट्रायल से करो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय ऑप्शन, लेकिन हम एक स्टेप अगर अपने तरफ से बढ़ेंगे ना तो बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। ओवरऑल टाइम ही बचाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, x मान लिए, x माइनस 2 मान लिए। सो पहले हमें जितना मिल रहा था अब हमें उससे 4 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट का वर्थ कम हुआ होगा, प्राइस कम हुआ होगा। सो 16 रुपीज़ था, 16 रुपीज़ अपॉन x माइनस 2, 16 रुपीज़ इज द टोटल अमाउंट विच वी हैव एंड x माइनस 2 इज द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। प्राइस घट गया, तो आपके पास अगर 16 रुपीज़ है और किसी प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपीज़ है, तो आप वो प्रोडक्ट अगर 2 रुपीज़ पर केजी है तो आप कितना क्वांटिटी में खरीद पाओगे दैट प्रोडक्ट। Suppose if you have 16 rupees in your pocket and you are going to purchase any article that cost 2 rupees per kg. So how much quantity of that article you can purchase? 8. How? 16 divided by the cost price. So 16 divided by x minus 2. Whatever you are purchasing when the price has decreased by 2 minus whatever earlier you were purchasing, 16 upon x is 4 kg. समझ में आया? नहीं आया? भाई 16 आपके पास 16 रुपीज़ है। आप सपोज करिए कि मान लीजिए प्रोडक्ट 4 रुपीज़ पर केजी था, तो आप कितना केजी खरीद पाओगी? 16 रुपीज़ आपके पास है और सपोज करिए कि आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसकी कॉस्ट 4 रुपीज़ पर केजी है, तो आप 16 रुपीज़ में कितना केजी खरीद पाएंगे उस प्रोडक्ट को? 4। कैसे? 16 डिवाइडेड बाई 4 किया आपने। अब मैं बोल रहा हूं कि वो प्रोडक्ट की प्राइस 2 रुपीज़ से कम हो गई है, अब आप कितना खरीद पाओगी? 8। कैसे? 16 अपॉन अर्लियर प्राइस था 4, अब प्राइस कितना हो गया? 4 माइनस 2 2, 8। अब आप 8 केजी खरीद रही हो, पहले आप कितना खरीद पा रही थी? 4 केजी। सो मैं यही बोल रहा हूं कि जो अब खरीद रही हो माइनस जो पहले खरीद रही हो उसका डिफरेंस 4 केजी है। 16 अपॉन एक्स माइनस 2 हमें नहीं पता है, ये नया प्राइस है, माइनस 16 अपॉन एक्स 4 जो हमें पता नहीं है, इसका डिफरेंस हमारा 4 केजी आ रहा है। वही तो यहाँ पे मैंने किया है, जो यहाँ पर आप तुरंत तो बता दिए हो। इस तरह से मैंने x लिख दिया तो यहाँ दिक्कत हो रही है। इस वजह से आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड वेरिएबल्स, लेकिन कहीं कहीं मैंडेटरी हो जाती है यूज़ करना, हो जाता है यूज़ करना। ठीक है, तो 16 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 16 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। अब सी दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। whenever we are going to solve this then we have to take the LCM, और LCM जैसे ही हम लेंगे it will become quadratic। क्वाड्रेटिक में कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। ओके, तो अब ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है? देयर विल बी 4 ऑप्शंस, आप पुट करते जाइए, जिसको पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे LHS 4 आ जाए वो ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन x इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक में देखिए ऐसे होगा, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस 2, नीचे का एलसीएम, सिंस इधर x है तो उधर क्या चला जाएगा? x माइनस 2 इंटू 16, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस 16 और इधर आ जाएगा माइनस 16, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16x माइनस 16x प्लस 32 हाँ इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, ये 16 कैंसिल, सो हमारा क्या बचेगा 32 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं माइनस 8x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। हमने 32 को उधर लेते गए, अब इसमें से एक काम करते हैं, हम 4 कॉमन ले लेते हैं, उधर 0 की तरफ भेज देते तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 ले लिया ना, 4 8 जा 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 8 को हम स्प्लिट करेंगे माइनस के साथ ताकि 2 आए, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो एक्स स्क्वायर ओके, जो हमारा मल्टीपल आएगा 8 का, उसको हमें माइनस के साथ है, इट मीन्स दैट कोई दो क्वांटिटी में ऐसे तोड़ना है जिसका सब्ट्रैक्शन 2 में आए, तो हमने क्या कर दिया 4 2 जा 8, तो माइनस 4x प्लस 2x, यहाँ से x कॉमन लीजिए, वहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ओके, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 2। अच्छा, इन सभी के आगे 0 चल ही रहा है, तो यानी x की दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या आएंगी, या तो x इज इक्वल टू 4 होगा या x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, निगेटिव क्वांटिटी हम लेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो या तो हम इस तरह से सॉल्व करें या हम ऑप्शन से निकाल लें, और अगर कई जगह ये भी गड़बड़ होता है तो एक मेथड आप लोग पढ़े होंगे धाराचार्य मेथड, जहाँ पे आता क्या है x इज इक्वल टू प्लस माइनस b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ओके। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सब जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, शायद हम लोग पढ़े होंगे, याद आता होगा, आई से डिनोट करते थे, आई की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट माइनस 1 कुछ, खैर छोड़िए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे बंद करते हैं, और जो फटाफट डाउट है हम बता देते हैं, ठीक है, आइए चलिए, ओके। सो ऑनलाइन स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर इज ओवर, थोड़ा स्पीड स्लो चल रही है, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी इंक्रीज सो दैट वी कैन कंप्लीट द एंटायर कोर्स इन 2 month ड्यूरेशन, ओके। सो थैंक यू।